Yeah, we are live. Yeah, give me a second. Oh, shared? I suppose. Yeah, so now you have shared it. Yeah. Hmm. Okay. Uh, Great. So, hello everyone. Today we have our very own doctor from Nagpur is Dr. Samir Arvat, who is MD and FCCP. He is a frontline warrior in this war against Corona. This doctor who is with us for this war, he needs no other introduction. So, before we start this interview, I would like to request Dr. Samir to give his opening remarks for the pandemic. Yeah. So first of all, I'm thankful to the organizers for inviting me for this live interview, and I believe we'll have a very good discussion regarding what basically are the scientific elements regarded to this pandemic, and what are the different ways that we can actually protect ourselves and maybe find a way to come out of this pandemic. Right. So thank you so much. Sir, basically the problem is there is a conspiracy behind the source, and without the source, even people are confused. The entire world wants to know what exactly is corona, and if a doctor is saying it, they would have a better trust. So, can you tell us like how it all started? See, I'll let you know basically what are the information that we have on evidence base. So when we talk about anything related to medical evidence, it has to have a proof. So usually we don't claim anything unless we have a proof. For example, I'll give you a very easy example. When we have to prove that smoking actually leads to lung cancer, it takes years and years of research to prove that yes, actually people who are smoking have more chances of getting lung cancer compared to the people who are not smoking. So in case of the coronavirus, the all the evidence that we have till now is that we've had this coronavirus before in the past. We've had coronavirus in 2002, 2003. That time it was the SARS virus, and then it was the MERS, which was in 2012 and 13. So we are again facing the coronavirus outburst right now, and the evidence that we have is that there has been a spike mutation in the virus. So when we talk about biology, viruses are a class of beings which are not considered live or dead. They usually go active and inactive when they come in contact with a host. So the virus that we are seeing now had some spike mutation somewhere in November and December, most probably in the province of Wuhan in China. And that's where this coronavirus outbreak actually began. There is no concrete evidence to say that it was made in a lab or it is human created. What we have learned from the past is viruses are often, coronavirus is a family which is often present in the animals, and at times what happens is this virus jumps from the animals to humans, and that is when we see the outbreak of coronavirus, which was there in SARS and MERS, and now we have it again as SARS-CoV-2. So the evidence says that there is a mutation in the virus, most probably when a human came in contact with an animal. This can be because of coughing or sneezing of the animals, or any secretions coming out of the animal which were then came in contact with a human being. But there is absolutely no evidence stating that this is made by a human or this is created in a lab. Right, sir. Thank you for clearing this conspiracy for the world. So the second question is with your work experience in Italy. We all know that you have a work experience in Italy and you're working with the majors there. So Italy was basically the epicenter of the virus. We all saw the deadly stories which happened there.
Now, Italy is considered as the second country which has the best medical facilities, and Italy miserably failed while fighting against the virus. On the contrary, India, which lacked medical standards, is doing much better. How can we conclude this? Yeah. So I think the question needs to be reframed. Um, uh, is it okay if I speak in Hindi, as in? Completely fine. Hindi and English both are fine. तो देखिए, कुछ चीजें ऐसी है जो हमको पहले समझनी पड़ेगी। जब हम इटली और इंडिया या यूएस और इंडिया का कंपैरिजन करते हैं अभी कोरोना वायरस के बारे में, तो इस सवाल में ही कुछ मुश्किलें हैं। पहली चीज ये है कि जो चीज इटली में मार्च और अप्रैल में हुई है, वो भारत में हो सकता है जून या जुलाई में हो। तो हम दो अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। आप ऐसा समझिए कि वहां पे कोई टूर्नामेंट चल रही है और वहां फाइनल्स चल रहा है और हमारे यहाँ टूर्नामेंट का क्वालिफाइंग मैच चल रहा है। तो आप उनके फाइनल्स और हमारे क्वालिफाइंग मैच को अभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इटली का जो डिफिकल्ट फेस मार्च और अप्रैल का था, जो चाइना का जनवरी और फरवरी में था, वो हो सकता है कि इंडिया में जून या जुलाई में आए। तो एक डायरेक्ट कंपैरिजन करना अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। इटली के फेवर में जो चीज थी वो ये थी कि उनका जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत सॉलिड है। प्रिवेंटिव मेजर्स पे उनका जो वर्क है वो बहुत दुनिया से बहुत आगे है। जो चीजें उनके फेवर में नहीं थी, वो चीजें जिसकी वजह से इटली में डिफिकल्टीज गई है, वो है फर्स्ट है उनका जेरियाट्रिक पॉपुलेशन, पीपल अबव द एज ऑफ 60। तो जो लोग 60 के अबव है, उनका टोटल काउंट इटली में अराउंड 15 to 25% तक जाता है। इंडिया में हमारा वो एज ग्रुप पॉपुलेशन 5% से नीचे है। तो उनके यहाँ जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, ऐसे लोग जिनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा थे, वो इंडिया से कहीं ज्यादा है। दूसरा चीज, उनके यहाँ पे बहुत सारा इंटरमिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन होता है। इटालियन कल्चर के बारे में आप एक चीज जानना चाहेंगे, उनमें काफी सारी चीजें इंडियन से समानता है। उनके यहाँ हर हफ्ते में दिन में एक बार फैमिली के सब लोग साथ में मिलके खाना खाते हैं। एक फैमिली के 20 से 30 लोग एक जगह पे मिलते हैं और वीकली एक मीटिंग करते हैं। ये काफी सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से वहां पे स्प्रेड जो था वो काफी जल्दी बढ़ा। और इंडिया में इसके कंपैरिजन में लॉकडाउन जल्दी होने की वजह से आज हम जो इंडिया में देख रहे हैं जो फेवरेबल सिचुएशन है, वो इसलिए क्योंकि इंडिया में लॉकडाउन किया गया और लोगों का इंटरमिंगलिंग कम हो गया। हर कंट्री का जो स्ट्रैटेजी रहता है हेल्थ से डील करने का, वो डिफर करता है। यूके में, यूएस में, इटली में प्रिवेंशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। वो ये कोशिश करते हैं कि लोग बीमार ना पड़े, लेकिन बीमार पड़ने के बाद जो तैयारी रहती है उसके लिए इस बार दुनिया में कोई भी ठीक से प्रिपेयर्ड नहीं था। Nobody was well prepared to take or handle such a big number of patients coming into the ICU. They were prepared to handle a number of patients in their OPD but not in the ICU. So these are the differences because of which Italy, USA, countries way more advanced than us have faced it very difficult in comparison to India. But this is too early to predict for India because we might see our peak somewhere in June or July. Right, sir. So, जैसा आपने बोला, the best comparison to understand for a common man कि उनका फाइनल मैच चल रहा है और हमारा क्वालिफाइंग मैच चल रहा है वर्ल्ड कप का। तो इसी बहाने अगर हम ये सोचे कि रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर है, उन्होंने ये बोला कि द पीक इज येट टू कम, द वर्स्ट इज येट टू कम, और वो जून या जुलाई में आएगा। वाइल देयर इज अ थिंक टैंक नेम्ड एज मैकेंजी, उन्होंने ये बोला है कि मिड मई में जो पीक आएगा दैट वुड बी द फाइनल पीक फॉर द कंट्री। और जैसे कि हमने सारे बाकी कंट्रीज का स्टडी देखा है कि once we achieve the peak then the graph goes very down and then we are corona free. So we want to understand कि इंडिया के साथ क्या हो सकता है, और जो कंट्रीज आज कोरोना फ्री हो गई है, so what was their story as per the vision of a doctor. Okay. देखिए, ये जो सिचुएशन है इसको हम कॉन्स्टेंटली एंड रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशन कह रहे हैं। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन इस सिचुएशन के बारे में हमें आज है, हो सकता है कल 24 घंटे में ये इंफॉर्मेशन पूरी चेंज हो जाए। ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही रेयर और एक बहुत ही न्यू सिचुएशन है जिसमें कुछ भी प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी डिफिकल्ट है। आज मैं भी बैठ के आपको कोई 100% गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि इस चीज का ऐसे ही होने वाला है। बहुत सारे इकोलॉजिकल
जोग्राफिकल, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स चीजों पे डिपेंड करते हैं। आपके यहाँ कितने लोग रह रहे हैं, लोगों का पॉपुलेशन क्या है, डेंसिटी क्या है, वेदर चेंजेस क्या है, आपने लॉकडाउन कब स्टार्ट किया, आपने टेस्टिंग कितना किया है, आपका हेल्थ केयर कितना इक्विप्ड है। तो ये सारी चीजें देखते हुए कोई भी चीज को डेफिनेटली प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछते हैं तो अभी तक हम पीक से बहुत दूर है। इंडिया में भी आप देखोगे तो पॉकेट्स फॉर्म हुए हैं, ये हर कंट्री का रहता है। आज बॉम्बे में जो डेंसिटी है पेशेंट्स का, बॉम्बे में जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है, क्वाइट पॉसिबल इंडिया में नागपुर जैसे शहर में ये सिनारियो हमको 2 या 3 हफ्ते बाद दिखेगा। तो बॉम्बे और नागपुर में भी हमको एक डिफरेंस दिखता है स्टार्ट ऑफ केसेस से लेके पीक तक पहुंचने का। तो ऐसे ही हर कंट्री का डिफर करता है। मुझे लगता है कि मई इज टू अर्ली टू कॉल अ पीक। मोस्ट प्रोबेबली जून या जुलाई तक हमारा पीक जाएगा। लॉकडाउन का एडवांटेज ये होता है कि केसेस बढ़ती नहीं है, और डिसएडवांटेज ये है कि जो आउटकम है उसको हम डिले करते हैं। तो क्वाइट पॉसिबल हमारा जो पीक है वो जून जुलाई में रहेगा। सारी कंट्रीज का जो अंडरस्टैंडिंग रहा है, एक जो हम समझते हैं कि इसमें से बाहर जो निकल रही है कंट्रीज, ये भी बहुत इनकम्प्लीट है। अभी भी कहीं से भी अश्योरेंस नहीं है कि चाइना में जितने केसेस ट्रीट हो गए हैं, जितने लोग अभी नॉर्मल हो गए हैं, इनको अगले 2 महीने में, अगले 2 साल में कब री इन्फेक्शन हो सकता है, इसका अभी तक हमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नॉर्मली जो फ्लू वायरस रहता है उसमें अगर आपको एक बार फ्लू का इन्फेक्शन होता है, स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन होता है, तो आपको 1 से 2 साल की इम्यूनिटी आ जाती है। बट हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि कोरोना वायरस में आपको इम्यूनिटी 2 महीने के लिए रहेगी या 2 साल के लिए। तो इसमें से हम कैसे निकलेंगे ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बट यूजुअली जो एपिडेमियोलॉजी मतलब बीमारियों के बारे में जो जानकारी या अंडरस्टैंडिंग है, जो सब्जेक्ट है, उसमें ये देखा गया है कि जब भी 50 to 60% पॉपुलेशन आपकी इन्फेक्ट हो जाती है, तब आपका बीमारी का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, आपका ग्राफ कम होने लगता है, क्योंकि उस समय इन्फेक्ट करने के लिए लोग ही कम बचते हैं। आप ऐसा सोचिए कि आपने एक बकेट में 100 लोगों को डाल दिया है, इसमें से धीरे धीरे एक आदमी से दो, दो से चार ऐसे लोग इन्फेक्ट होने लग जाते हैं। पर जब 50 to 60% लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो आगे इन्फेक्शन बढ़ने के लिए पॉपुलेशन बचती नहीं है, और इस टाइम पे वायरस का जो स्प्रेड है वो डिक्लाइन पे आने लगता है। हर कंट्रीज में ये फैक्टर्स डिफर करते हैं। कुछ कंट्रीज है जैसे साउथ कोरिया है, जर्मनी है, जिन्होंने सबसे पहले टेस्टिंग स्टार्ट किया। तो उन्होंने सबसे पहले टेस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन एंड आइसोलेटिंग ऑल द पॉजिटिव पेशेंट्स, ये उन्होंने बाकी कंट्रीज से पहले स्टार्ट किया। तो इस वजह से उनको कुछ बेनिफिट रहा है। काफी सारी कंट्रीज है जहाँ पे उन्होंने हेल्थ केयर सबसे पहले स्ट्रॉन्ग किया है, हेल्थ केयर की तरफ से इसको डील किया है। तो ये हर कंट्री में डिफर करेगा। जहाँ पे भी वेदर चेंज होगा, जहाँ पे भी लोगों की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, वहां ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द फ्यूचर फॉर इंडिया, but I believe another 3 to 4 months will be critical for us to define how many deaths we see in this COVID-19 pandemic. Right. All right, sir. So you are basically leading the, as we told that you are a frontline warrior. You are leading the Creams Hospital. You are being, you have already been a intervention pulmonologist, and your research in this regard is comprehensive. So respiratory problem is the major serious symptoms of COVID-19. Any medical knowledge you would like to share to differentiate the actual symptoms? Okay. So first thing that I suppose everybody is very clear is how does the SARS-CoV-2 virus spreads. So मैं एक बार क्लियर करना चाहूंगा, जो बीमारी है उस बीमारी का नाम है कोविड-19, और जो वायरस है उसका नाम है SARS-CoV-2। तो ये वायरस और बीमारी को 2 नाम दिए गए हैं, और अभी हमें काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि ये वायरस फैलता कैसा है। इसका मेन जो ट्रांसमिशन है वो होता है हमारे खांसने से या छींकने से। सो जब भी कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता है या छींकता है, तो उनके नाक से या मुंह से जो सिक्रीशंस निकलते हैं, ये दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकते हैं नेजल, ओरल या आई के रूट से। तो अगर कोई आपके आसपास खांसता है और वो सिक्रीशंस आपके नाक या मुंह के कांटेक्ट में आते हैं, तो आपको SARS-CoV-2 वायरस का इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो इसको हम रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं।
कई वायरस रहते हैं जो खाने की तरफ से, पानी की तरफ से फैलते हैं, पर ये ऐसा वायरस है जो रेस्पिरेटरी रूट से फैलता है। दूसरा जो रूट ऑफ स्प्रेड है वो है फोमाइट स्प्रेड, जिसमें हम देखते हैं कि अगर कोई खांसता है या छींकता है और उनका जो कफ या नेजल सिक्रीशन है ये किसी भी सरफेस पे रहते हैं और आप उस सरफेस को टच करते हैं और फिर वही हाथ आपके नाक या मुंह को लगाते हैं, तो आपको री इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसे हम फोमाइट या सरफेस इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ये दो तरीके हैं। इसमें मेन सबसे डिफिकल्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको कुछ डिफेंस मैकेनिज्म रहते हैं, आपके नाक में कुछ ऐसी चीजें रहती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी बाहर से आने वाले जो पोल्यूटेंट्स है, जो इन्फेक्शन है, उनको रोकने की कोशिश करती है। पर आप जैसे जानते हैं कि हमारा ब्रीदिंग एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, हम 24 घंटे ब्रीथ करते रहते हैं। ये खाने से डिफर करता है, खाना एक वॉलेंट्री प्रोसेस है। तो आप जब 24 घंटे ब्रीथ करते रहते हैं तो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन को कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रेस्पिरेटरी वायरस ही हमेशा बहुत ज्यादा फैलते हैं और बहुत ज्यादा डैमेज या बहुत ज्यादा बीमारी फैलाते हैं। Right. So the symptoms question is unanswered. The like दो प्रकार के symptoms हैं. सिम्टम्स क्या है इसके? सिम्टम्स अभी तक जो समझ में आए हैं इसके मेन 2-3 ही सिम्टम्स है। जो भी पेशेंट को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है उन लोगों को खांसी होती है, उन लोगों को छींक आती है और आगे बढ़ के उनको सांस लेने में तकलीफ और साथ में बुखार आता है। मुश्किल ये है कि यही सिम्टम्स आपको और कई सारी बीमारियों में मिलते हैं। यही चीज आपको फ्लू में दिखती है, यही चीज आपको स्वाइन फ्लू में दिखती है, आपको एक बैक्टीरियल निमोनिया में भी यही चीज दिखती है। कई बार आपको एलर्जी में भी यही सिम्टम्स दिख के आते हैं। और अभी तो डॉक्टर्स की तरफ से ये जानना ऑलमोस्ट नामुमकिन है कि आपके सिम्टम्स कोरोना वायरस के हैं या एलर्जी के हैं या आपके सिम्टम्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के हैं या एक साधारण फ्लू इन्फेक्शन के हैं। तो अभी तो भी सिम्टम्स को डिफरेंशिएट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। Okay. So sir, अभी जो major problem है, so there are some frontline warriors who are victimized and we have lost their lives already because of COVID-19. These people majorly are policemen, civil workers and essential service providers. These people are not even doctors and they definitely lack medical knowledge. So according to you, what are the measures to keep them safe, and do you suggest any policy decisions to the government? So there are two questions. So first is for the frontline warriors who are not doctors. ओके, सो अभी जो ये हम सिचुएशन देख रहे हैं ये एक तरीके का इमरजेंसी सिचुएशन है। हम ऐसे काफी सारे हमारे लाइफ में चेंजेस ला चुके हैं जो हमें लाने पड़े हैं, जो हम नॉर्मल लाइफ में नहीं करते हैं। तो जो लोग भी इस सिचुएशन में आगे बढ़ के काम पे जा रहे हैं और इस सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, जैसे डॉक्टर्स है, एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स है, बहुत सारा सर्विस क्लास है जो आज भी बाहर जा रहा है, लोगों से जिनका घुलना मिलना हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है, जिन्हें रिस्क सबसे ज्यादा है कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने की। तो इन लोगों के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमने इनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। मतलब इन लोगों को हमने वो सारी चीजें अवेलेबल करानी है जिससे इनको वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो, जिसमें सबसे पहले आते हैं मास्क। तो प्रॉपर मास्क पहनना इनके लिए जरूरी है। इसके साथ में जरूरी है कि जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स है, इनका जो वर्क शेड्यूल है, इनके जो शिफ्ट है, इनका जो टाइम ऑफ वर्क है, ये प्रॉपरली डिफाइंड हो ताकि ये खुद काम से एग्जॉस्ट ना हो जाए। एग्जॉस्ट होने की वजह से इनकी इम्यूनिटी कम हो सकती है और इनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। इसके साथ में सोसाइटी से ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद फ्रंटलाइन वॉरियर है, चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिसमैन हो या कोई एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आपने उनसे कोऑपरेट करना है, आपने थोड़ा सा स्पेशल एफर्ट लेना है जिससे उनके काम में तकलीफ ना हो और उन्हें अगर कोई तकलीफ है तो उसमें आप उनकी हेल्प कर सके। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम अभी तो भी कोशिश कर सकते हैं कि हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है इनको हम इन्फेक्ट होने से बचाए। और धीरे धीरे हमें कई सारे नए इनोवेशंस करने हैं, कई सारी नई आइडियाज लानी है जिससे हम इन लोगों की सेफ्टी बढ़ा सके। अब बात करते हैं पॉलिसी डिसीजंस के बारे में। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो सारी गवर्नमेंट बॉडीज है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या
हमारे यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट है और नागपुर म्यूनिसिपालिटी है या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ये सारे लोग जो अभी काम कर रहे हैं ये काफी सराहनीय है, ये काफी काबिले तारीफ है, क्योंकि ऐसे टाइम पे इतने बड़े कंट्री को इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन, मतलब ऐसे लोग जिनकी ईटिंग हैबिट्स अलग है, जिनका रिलीजियस बिलीफ्स अलग है, ऐसे लोग जिनका एज ग्रुप अलग है, ऐसे इतने बड़े कंट्री में ये एक एक्सरसाइज करना और इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, ये एक बहुत काबिले तारीफ चीज है। और गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो एक बहुत ही वेल, as in I can appreciate to any limit, just to tell you that whatever is being done by the government is extremely great, but we will have to change our outlook towards health. लोगों को सेहत और हमारी मेडिकल हेल्थ के बारे में जो भी जानकारी है उसमें हमको एक कंप्लीट रिवैम्प की जरूरत है। लोगों ने हेल्थ को सीरियसली लेना है। जहां तक पॉलिसी मैटर्स की बात आती है तो आई सपोज सब लोग समझ चुके हैं कि अभी हमारे लिए एसेंशियल क्या है और क्या एसेंशियल नहीं है। अगर आप 6 महीने पहले मुझे पूछते तो ज्यादा से ज्यादा लोग कहते थे कि एक अच्छे शहर के लिए एसेंशियल होता है एक अच्छा मॉल होना, एक अच्छा कैफे होना, एक अच्छा अम्यूजमेंट पार्क होना। बट हमें इमरजेंसी में ध्यान में आया है कि आपके लिए एसेंशियल क्या है, तो एसेंशियल है गुड हॉस्पिटल्स, बेसिक एसेंशियल नीड्स, जो आपका ग्रोसरी स्टोर है जहां आपको कोई लग्जरी आइटम नहीं मिलता है पर आपके बेसिक्स अवेलेबल होते हैं, एक अच्छा पुलिस फोर्स, और आपके घर पे जो लोग आपको रेगुलरली हेल्प देते हैं, डोमेस्टिक हेल्प देते हैं, ये सारी आपकी एसेंशियल नीड्स है। तो हमको अभी जरूरी है कि पॉलिसी चेंजेस में हम वापस जाए और एसेंशियल्स की तरफ ध्यान दें। हम हमारे हॉस्पिटल्स को बेटर बनाएं, हम हमारा जो पुलिस फोर्स है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, इनकी जो वर्क प्लेस है इसमें इम्प्रूवमेंट देखें। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ हम हमेशा आइडलाइज किसको करते हैं, हम हमेशा सेलिब्रिटीज को आइडलाइज करते हैं, हम हमेशा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आइडलाइज करते हैं, स्पोर्ट्समैन को करते हैं। पर इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ती है एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी पुलिस फोर्स की, एक अच्छे हॉस्पिटल की, अच्छे डॉक्टर्स की, नर्सेस की। बहुत सारे हॉस्पिटल से रिलेटेड लोग रहते हैं जो क्लीनिंग करते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं, वो लोग जो रोज आपके घर के सामने का रोड साफ करते हैं, ये सारे एसेंशियल लोग हैं जिनके तरफ अभी हमको पॉलिसी चेंजेस जिनके फायदे में करना जरूरी है। Right. Thank you for that question. So basically, we want to know what is your war against Corona. You have been showing your work to various government and non-governmental institutions. So we want to be enlightened with it. Okay, so I would like to first update people about what exactly is going on in various cities in India right now. So the government is now working in a way in which we can actually try to get maximum people affected with COVID-19 either admitted in a hospital or people who are positive and asymptomatic, मतलब जिनको पॉजिटिव आए हैं पर कोई भी लक्षण नहीं है, उनको क्वारंटाइन कैसे किया जाए। तो इसमें कोशिश ये जारी है कि काफी सारे हॉस्पिटल्स डिफाइन किए गए हैं जिनको हमने कोविड-19 डेजिग्नेटेड सेंटर बताया है। आप देख सकते हैं हर कंट्री में अलग अलग मॉडल फॉलो हुआ है। कुछ कंट्रीज में ऐसा देखा गया है कि जब हर हॉस्पिटल में आप कोविड-19 के पेशेंट एडमिट करते हैं तो क्रॉस इन्फेक्शन बढ़ जाता है। मतलब अगर आपके हॉस्पिटल में 2 कोरोना वायरस के पेशेंट है और 10 पेशेंट नेगेटिव है तो इन 2 पेशेंट से बाकी 10 को इन्फेक्शन हो जाता है। इससे बचने के लिए डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल डिसाइड किए जाते हैं, जिसमें ऐसे हॉस्पिटल गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करते हैं या ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स रहते हैं जहां पे सारे कोरोना वायरस के पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है जिससे क्रॉस इन्फेक्शन ना बढ़े। एक बहुत जरूरी चीज जो लोगों को नहीं पता है कि कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ गई है पर बाकी बीमारियां रुकी नहीं है। तो अभी भी जो साल भर हॉस्पिटल में पेशेंट्स की लाइन लगी रहती है, डायबिटीज के पेशेंट, हाइपरटेंशन के पेशेंट, ब्रीथिंग डिफिकल्टी के पेशेंट, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट, लंग कैंसर के पेशेंट, इनका भी अभी भी बीमारी बढ़ रही है और इनका भी इलाज करना जरूरी है। तो कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे डिफाइन किए गए हैं जहां पे कोरोना वायरस का इलाज हो रहा है और बाकी हॉस्पिटल ऐसे हैं जो नॉन कोरोना वायरस पेशेंट का इलाज कर रहे हैं।
मेरी तरफ से मैंने जो कोशिश की है उसमें मार्च के लास्ट वीक में मैंने एक इन्वेंशन किया है जिसको ब्रोंकोस्कोपी सेफ्टी बॉक्स कहा गया है। ये एक बॉक्स है जिसमें जब भी किसी डॉक्टर को ब्रोंकोस्कोपी या इंट्यूबेशन नाम की प्रोसीजर करनी पड़ती है तो पेशेंट से डॉक्टर को होने वाला इन्फेक्शन जो है उसको कम से कम किया जा सके। उस समय इटली में ये जो कोरोना वायरस था ये काफी बढ़ चुका था और मार्च के लास्ट वीक तक 60 से ज्यादा डॉक्टर्स की इटली में मौत हो गई थी कोरोना वायरस की वजह से। तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में 2 अप्रैल को इस बॉक्स का क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैंने इटली में किया, जहां उन लोगों ने इस बॉक्स की जो यूटिलिटी है, इसके जो फायदे हैं उसको काफी अप्रिशिएट किया और उन्होंने इस बॉक्स का नाम अर्बट सेफ्टी बॉक्स रखा है। और अभी उनके यहाँ जो एक ऑफिशियल पेपर रिलीज हुआ है, एक रिसर्च पेपर ब्रोंकोस्कोपी इन कोविड-19 पेशेंट्स में, उसमें उन्होंने इस बॉक्स का ऑलरेडी मेंशन किया है और बताया है कि इसके क्या-क्या फायदे हैं। और लास्ट 1 मंथ में इटली में कई डॉक्टर्स ने ये बॉक्स रेप्लिकेट किया है और इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये एक कोशिश है कि जब भी डॉक्टर कोरोना वायरस के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उस समय अगर पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो इंट्यूबेशन किया जाता है, या अगर पेशेंट को ब्रोंकोस्कोपी की जरूरत पड़ती है तो उस समय पेशेंट से आसपास के डॉक्टर, नर्स और बाकी पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए ये बॉक्स बनाया गया है। आगे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 हम और इनोवेशन बना रहे हैं जिससे हम कोरोना वायरस का जो फैलना है उसको हम कम कर सके, इसका टेस्टिंग हम ज्यादा बढ़ा सके, कम्युनिटी टेस्टिंग बढ़ा सके। हम कुछ इनोवेशन ऐसे बना रहे हैं, हो सकता है अगले 15 दिन में ये नागपुर में अवेलेबल हो जाए, जिससे हम छोटे छोटे गलियों में जाके लोगों का टेस्टिंग आसानी से कर सके, जिससे क्रॉस इन्फेक्शन कम हो। तो ये सारी कोशिश है जो डॉक्टर्स कर रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि इसी कोशिश से हम जो कोरोना वायरस का जो डेथ रेट है, जिसको मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं, इटली में ये 10% से ज्यादा देखा गया, चाइना में 3 से 4% देखा गया। इंडिया में अगले 2-3 महीने में हम समझेंगे कि इंडिया का मॉर्टेलिटी रेट कितना है, पर कोशिश की जाएगी कि इसको 3 से 4% या उससे कम रखा जा सके, और उसी में मुझे लगता है सारे डॉक्टर्स अपनी कोशिश जारी रखें। सर, आप जो टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो वो टेस्टिंग किट आप इन्वेंट करने के लिए जा रहे हो या एनी अदर रिसर्च प्रोडक्ट इट इज? हम ऐसे मॉड्यूल्स बना रहे हैं जिससे एग्जिस्टिंग टेस्टिंग किट को हम कम्युनिटी में ले जा सके और कोशिश करें कि एक दिन में नंबर ऑफ टेस्टिंग जो है वो पहले से 5 या 10 गुना बढ़े, और जो लोग ये टेस्टिंग करने जाते हैं उनको इस इन्फेक्शन से कोई बीमारी ना हो। ओके, ओके। सो नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट द माइग्रेंट्स। सो ये जो माइग्रेंट्स है, ये 1000 किलोमीटर चल रहे हैं और एक हाई इंटेंसिटी जोन से लो इंटेंसिटी जोन में जा रहे हैं। कोरोना का जो अर्बन पॉपुलेशन है, प्लस अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, मैंने जो एनालिसिस किया है वो ये बोलता है कि कोरोना केम आउट विद द अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन स्लम्स में गया। सो द कंक्लूजन एज ऑफ नाउ इज कि इट इज द वायरस इज फॉर अर्बन पुअर, विच वाज बैड। अभी वो अर्बन पुअर माइग्रेट कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर दूर अपने गांव जा रहे हैं, तो वो रूरल पुअर में जा रहे हैं। So I want to understand how dangerous it can be, how dangerous the nightmare could be for all of us. आपने जो एक एनालिसिस बताया है, मुझे लगता है कि ये एनालिसिस गलत नहीं है, पर एक इंडिया की हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि जब भी कोई बीमारी आती है तो हम कहते हैं ये अमीरों की बीमारी है, ये गरीबों की बीमारी है। और ये कहने से होता तो कुछ नहीं है, बट लोगों में काफी भेदभाव हो जाता है, और इसका जो भी आगे का ट्रीटमेंट है या वर्क है उसमें काफी सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं। तो ये बात गलत नहीं है कि जो कोरोना वायरस है ये सबसे पहले जब भी किसी ने फॉरेन ट्रैवल किया है उससे ये हमारे कंट्री में आए हैं, जिसको हम बेसिकली स्टेज 1 कहते हैं किसी भी पैंडेमिक का। स्टेज 2 वो होता है जब वो फर्स्ट पर्सन आसपास के लोगों के कांटेक्ट में आता है, और स्टेज 3 होता है जिसमें हम कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन का और अभी इन्फेक्टेड पर्सन का कोई रिलेशन नहीं रहता है, लोग आपस में ही बीमारी फैलाना शुरू कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भी बात सही है कि ये पहले सिटीज में पाया गया है, और अब जब ये लोग सिटी से वापस हम
स्मॉलर टाउन्स या विलेजेस में जाएंगे तब ये बीमारी फैलने के चांसेस है। तो ये सारी बातें एक तरीके से सही है, और मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जब भी हमारे देश में ऐसी कोई बीमारी फैलती है तो हर एक नागरिक, हर एक सिटीजन की हेल्थ का ध्यान रखना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आई बिलीव इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत दुख की बात है कि जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स है, जो अपने गांव या अपने छोटे जिले को छोड़ के बड़े शहर में आते हैं और हमारी शहर की ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में रोल प्ले किया है, जैसे मैंने कहा सैनिटाइजेशन है, डेली नीड सर्विसेज है, ये लोगों को काफी दिक्कत गई है, ये लोगों को काफी मुश्किल गई है वापस अपने गांव जाने में। कन्वेंस का प्रॉब्लम रहा है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस रहे हैं, कई लोगों को पैदल जाना पड़ा है, कई लोगों को साइकिल करके 500 से 1000 किलोमीटर जाना पड़ा है। ये बहुत ही दुख की बात है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे इनकी ये तकलीफें कम हो। बट ये एक इमरजेंसी है जिसमें सारी चीजों को एक साथ हैंडल करना मुझे लगता है गवर्नमेंट के लिए भी काफी मुश्किल है। बट आई बिलीव कि हमने आगे आने वाले दिनों में ये सारे प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट नहीं पर मिनिमाइज या स्मूदन आउट करना तो भी कोशिश करनी चाहिए। राइट सर, तो हम आगे आने वाले प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो अभी ट्रेन शुरू हो गई है, बसेस शुरू हो गई है, माइग्रेंट्स के पास अभी एक और ऑप्शन आ गया है, पर इसके लिए देर आर प्रॉब्लम्स विद द गवर्नमेंट। सो वी वोंट डिस्कस पॉलिटिक्स हियर, बट वी वुड डिस्कस द क्रिस्प ऑफ इट, कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, सो इज इट इनफ to let them travel again from the high intensity zone to the low, or vice versa? And again, the question of the poor comes in, that is corona more dangerous than poverty? So how do we frame it? Okay, see, this is a very non medical question, but Yeah. मैं फिर भी आपको कुछ बता सकता हूँ कि यदि हम बात करते हैं एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन की, अगर हम कहते हैं कि सारी चीजें हमारे हिसाब से अगर चल रही है, अगर हम एक काल्पनिक जीवन में जी रहे हैं, तो सबसे सही तरीका ये रहेगा कि जो लोग अभी शहर में हैं, उनको हम शहर में ही रोक ले और उनको हम वापस जाने ना दें। पर ऐसा करते समय आपको पूरा ध्यान रखना है कि हर एक व्यक्ति को एक साफ सुथरा घर मिले, वहां उनको वो सारी चीजें मिले जो आज आपको और मुझे हमारे घर पे बैठ के मिल रही है, मतलब साफ खाना, साफ पानी। तो ये सारी चीजें एक तरीके से प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है, ये काल्पनिक बातें ठीक लगती है, पर प्रैक्टिकली पूरे माइग्रेंट पॉपुलेशन को शहर में रोक के रखना और उनको सारी वो सुविधाएं देना जिसमें वो फिर से आपस में क्रॉस इन्फेक्शन ना फैलाए, ये बहुत डिफिकल्ट है। अब बात आती है उनकी वापस जाने की। तो वापस जाते समय आज जो मैक्सिमम एक कोशिश की जा सकती है वो ये है कि आप सारे पेशेंट को स्क्रीन कीजिए, मतलब आप सारे लोगों को देखिए इनमें से कौन लोग है जो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड-19 है, कौन लोग है जो लो प्रोबेबिलिटी है। पर उनको हमें आज वापस जाते समय स्क्रीनिंग के सिवा टेस्टिंग ही एक ऑप्शन है। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि हम सारे लोगों को टेस्ट कर सकते हैं, और टेस्ट करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये वापस जाए या नहीं। बट आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो बहुत ही एडवांस्ड कंट्रीज है जैसे यूएस है, जहाँ पे हेल्थ का बजट हमारे कंट्री से बहुत ज्यादा है, जहाँ की हॉस्पिटल्स हमारे हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, वहां पे भी टेस्टिंग पे लिमिटेशन है। आज भी पीपीई किट्स और टेस्टिंग उनके पास भी कम है और हमारे पास भी कम है। तो हमें एक बीच का रास्ता ढूंढना पड़ता है जिसमें हम लोगों की मैक्सिमम हेल्प कर सके। हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत रिस्क इन्वॉल्व हो, तो मुझे लगता है स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट आज के लिए सही है। हो सकता है अगले 1 महीने में हमने इन सारे लोगों का टेस्टिंग करना भी जरूरी हो जाएगा। Okay. So सर, अभी हम इस डिसीज को एक दो हिस्से में बांट देते हैं। एक हिस्सा है कि इसका वैक्सीन आ जाए ताकि लोगों को उससे संक्रमित ही ना हो। दूसरा हिस्सा यह है कि इसका मेडिसिन आ जाए ताकि जो भी सफर्ड विक्टिम्स है या जो भी पेशेंट्स है उनका एक अच्छे से इलाज हो जाए। सो कंसिडरिंग दिस,
you being a doctor, we want to understand what are the cases कि हमको कितना टाइम रुकना पड़ सकता है, are we going in the right direction, और इसके बाद आगे क्या होगा, like what should we wait for? तो जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन की बात जब भी हम करते हैं तो इसमें दो आपने चीजें कही, फर्स्ट इज वैक्सीन एंड सेकंड इज मेडिसिन। ये दो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं ये देखने के लिए कि हमारा ये वायरल इन्फेक्शन से जो लड़ाई है इसमें हम जीतते हैं, कितने जल्दी जीतते हैं और किस तरीके से जीतते हैं। इसमें एक और चीज होती है जो एक एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर है, वो है वायरस का खुद का विरुलेंस, मतलब वायरस खुद कितना इन्फेक्टिव रहता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वायरल इन्फेक्शन खत्म कैसे होता है, कोई भी पैंडेमिक को खत्म कैसे किया जाता है। तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि एक आर नॉट फैक्टर क्या रहता है। किसी भी वायरस का एक आर नॉट फैक्टर देखा जाता है, मतलब एक संक्रमित व्यक्ति एक समय पे और कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो अभी कोरोना वायरस का आर नॉट फैक्टर 3 का देखा गया है, मतलब एक व्यक्ति को अगर इन्फेक्शन होता है तो ये और 3 लोगों को फैलता है। जब भी ये आर नॉट फैक्टर 0 के नीचे आएगा, ये वो समय रहेगा जब ये बीमारी अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। किसी भी इन्फेक्शन की वैक्सीन बनने के लिए कम से कम 1 साल का समय लगता है। ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस होता है जिसको बहुत थरली किया जाता है। साधारण शब्दों में समझिए तो हमें कम से कम 1000 ऐसे लोगों पे वैक्सीन ट्राई करनी है, जिनमें से हमें देखना है कितने लोगों को इसका फायदा हो रहा है, कितने लोगों को इसका फायदा नहीं हो रहा है। ऐसे कौन लोग हैं जिनको 20 की उम्र के पहले इसका फायदा है, ऐसे कौन लोग हैं जिनको 20 से 60 की उम्र में फायदा है, और ऐसे कौन लोग हैं जिनको 60 की उम्र के ऊपर फायदा है। ये सारी चीजें जब बहुत थरली मेटिकुलसली टेस्ट की जाती है, रीटेस्ट की जाती है, उसको फिर से अलाइन किया जाता है, ऐसा करते करते कभी कभी 1 साल मिनिमम लगता है एक वैक्सीन डेवलप होने के लिए। उसके बाद भी ये वैक्सीन तभी दिया जाता है जब आप नॉन इन्फेक्टेड हो, मतलब आपको बीमारी ना हो। तो वैक्सीन जो है ये एक फूल प्रूफ तरीका है जिससे हमको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा, बट इसे आने के लिए बहुत लंबा समय है। दूसरी बात आती है मेडिसिन की। वायरल मेडिसिन जो है उनको भी डेवलप होने को समय लगता है। सारे वायरसेस जो है इनमें एक रेगुलर म्यूटेशन देखा जाता है। एक जो फ्लू का वायरस रहता है, स्वाइन फ्लू का वायरस जो रहता है, उसमें हर साल में कुछ चेंजेस देखे जाते हैं जिसके हिसाब से वैक्सीन या दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की वैक्सीन अलग रहती है, सदर्न हेमिस्फीयर की वैक्सीन अलग रहती है। वायरस जो लास्ट ईयर देखा जाता है उसमें जो जीनोमिक चेंजेस रहते हैं वो इस साल अलग रहते हैं, तो हर साल एक नई वैक्सीन आती है। ये सारी चीजें हम उन वायरसेस के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम पिछले 10, 20 या 30 साल से जानते हैं। अब ये कोरोना वायरस जो आई है कम्प्लीटली नया है, तो इसकी मेडिसिन बनने के लिए भी कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे। तब तक हम एक ट्रीटमेंट जो देते हैं उसमें हम टारगेट ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब अगर वायरस से आपको हार्ट फेलियर हो रहा है तो हम हार्ट फेलियर की दवाई देते हैं। टारगेट से अगर आपको वायरस से लंग्स फेलियर हो रहा है तो हम लंग्स की दवाइयाँ देते हैं। तो तब तक यह ट्रीटमेंट जारी रहती है। एक और तरीका जो जाना गया है उसे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी रहती है जो आपके पॉपुलेशन को डेवलप होती है इन्फेक्ट होने के बाद। तो जैसे मैंने पहले बताया था, अगर 50 से 60% लोग आपके इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपके पॉपुलेशन में इस बीमारी का फैलना कम हो जाता है, इसकी स्पीड और इसका विरुलेंस कम हो जाता है। पर अभी भी हमारे पास कोई अश्योरेंस नहीं है कि हर्ड इम्यूनिटी आने के बाद इसका जो सेकेंड साइकिल आएगा वो 6 महीने बाद आएगा या 1 साल बाद आएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2014 और 15 में हमारे यहाँ पे स्वाइन फ्लू देखा गया। उस समय कई डेथ्स देखी गई, बॉम्बे में, नागपुर में, दिल्ली में, अलग अलग शहर में कई लोगों की मृत्यु हुई इस बीमारी की वजह से। उसके लिए फिर वैक्सीन डेवलप हुई, उसके लिए दवाइयाँ डेवलप हुई। 15-16 में ये इन्फेक्शन फिर से आया, परंतु इस बार इसका जो विरुलेंस या इसका जो डेंजर था वो पहले से बहुत कम था। और आज हम देखते हैं कि हमको साल भर स्वाइन फ्लू के पेशेंट आते रहते हैं, और अभी इसका जो डेथ होने के जो चांसेस है वो 2014-15 से बहुत ही कम है। अभी हम स्वाइन फ्लू के पेशेंट को बहुत इजीली ट्रीट कर पाते हैं, लोग आराम से ठीक भी हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ कोविड-19 के साथ होने के चांसेस है। क्वाइट पॉसिबल ये वायरस हमारे साथ आगे भी रहेगा, बस फर्क ये रहेगा कि आगे इसका जो डेंजर फैक्टर है, जो इसकी मॉर्टेलिटी रेट है, वो आज से बहुत कम रहेगा।
पर तब तक हमें रुकना पड़ेगा। हम जब भी कोई लॉकडाउन करते हैं तो हम बीमारी का फैलने की गति कम करते हैं, पर हम बीमारी को कम नहीं कर रहे हैं। हम जब टेस्टिंग करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनको हम आइसोलेट करें और उनको नॉर्मल पॉपुलेशन से अलग रखें, ताकि बीमारी फैलने की जो स्पीड है वो कम हो। बट इवेंचुअली जब तक 50% 60% पॉपुलेशन इन्फेक्ट नहीं होती है, तब तक ये इन्फेक्शन हमारे आजू बाजू आसपास रहेगा। इसमें कुछ मैजिकल फैक्टर्स हमारे काम में आ सकते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि वायरस में ऐसे कुछ म्यूटेशन हो जाए जो ये वायरस खुद ही अपने आप डेंजरस कम हो जाए। काफी सारी थियरीज है। लोग कह रहे हैं कि जिन कंट्रीज में बीसीजी वैक्सीनेशन दिया गया है वहां पे कोविड-19 का जो इफेक्ट है वो काफी माइल्ड देखा गया है। तो इंडिया उनमें से एक कंट्री है जहां हम रेगुलरली बीसीजी वैक्सीन देते हैं। इस वायरस का जो इन्फेक्शन रेट है वो ठंडी टेम्परेचर में ज्यादा है। तो हो सकता है इंडिया में टेम्परेचर्स की वजह से, गर्मी की वजह से हमें कुछ एडवांटेज रहे, पर ये सारे थियरीज है, इनको प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया गया है। तो ये सारी चीजें कंसिडर करते हुए मुझे लगता है आगे और 3-4 महीने यह वायरल इन्फेक्शन रहेगा। जो लोग बुजुर्ग है, जिनकी एज 60 से ज्यादा है, उन लोगों ने एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है। जो लोग यंग है उन्होंने रेगुलर हैंड वॉश करना है, फेस मास्क यूज करना है। अगर आपको कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो आपने डॉक्टर को जाके मिलना है। और हमें एक तरीके से इस पोस्ट कोविड इरा की आदत लगानी पड़ेगी। So the conclusion is what many politicians told कि हमको कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, बट आपने उसका बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन भी हमें दे दिया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमने अभी तक कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को अप्रोच नहीं किया। मतलब आज जो लोअर मिडिल क्लास बोलो, मिडिल क्लास बोलो, अपर मिडिल क्लास बोलो, इनकी ट्रीटमेंट हमेशा ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट क्लिनिक्स में ही होती थी। सडन चेंज हमने ये एक हिस्ट्री से लेके अभी तक जो देखा है कि अचानक से सब लोग डाइवर्ट हो गए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पास बिकॉज ऑफ द pandemic itself, because the solution is not there in the private hospitals. So जो क्वालिटी है, जो डिलीवरेबल्स है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स से और गवर्नमेंट डॉक्टर्स से, वो हम एट अ नेशनल लेवल हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसा उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं? देखिए, सारी कंट्रीज का एक हेल्थ के तरफ बजट रहता है। एक स्पेसिफिक अमाउंट रहता है जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है या रिजर्व रखती है हेल्थ केयर की तरफ। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का जो हेल्थ केयर बजट है वो बहुत सारी कंट्री से कम है, और इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम अभी भी एक डेवलपिंग नेशन है। हमारे इंडिपेंडेंस को अभी भी 100 साल होने के हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी दूसरे फैक्टर्स है, जिसमें से पॉवर्टी एक है, फूड सप्लाई एक है। हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चरल वेरिएशंस है, बहुत सारे टेम्परेचर वेरिएशंस है, बहुत सारे इकोलॉजिकल वेरिएशंस है, जिसकी वजह से अभी तक हम हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं कर सके हैं। लेकिन मुझे लगता है ये कोविड-19 एक अलार्म है, एक अलार्म बेल है, जिसके बाद हमारी आंखें अभी खुल जानी चाहिए। जितने भी डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो लोगों को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिस वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज है वो एट पार हो सके। आज भी बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो मशीन्स है, जो डायग्नोस्टिक मशीन्स है, जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज है, वो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल से आगे है। लेकिन वहाँ की साफ सफाई, वहाँ का क्लीनलीनेस, या वहाँ की जो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है, उनको अपग्रेड करने की जरूरत है, ताकि हमें प्राइवेट और गवर्नमेंट ये दोनों का एक प्रॉपर बैलेंस मिले, जहाँ 50-50 दोनों इंस्टीट्यूट्स आगे बढ़ सके। तो इसके लिए हमें आज जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पेंडिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे जो एक पंपिंग लगता है, वो हमें बढ़ाने की बहुत जरूरत है। और लोगों से भी एक्सपेक्टेशन की जाती है कि लोगों ने भी खुद के हेल्थ के तरफ प्रायोरिटी रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स को पेशेंट से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम रहते हैं। हमारे यहाँ अभी भी हम देखते हैं कि लोग जितना खर्चा सिगरेट पे करना चाहते हैं, लोग जितना खर्चा होटल में जाके डिनर पे करना चाहते हैं, वो खुद अपने इलाज पे नहीं करना चाहते। वेल टू डू अफ्लुएंट क्लास भी कई बार ऐसा होता है कि अपनी
तबीयत की तरफ जो है वो एक तरीके का नेग्लिजेंस रखते हैं, पर वो अपने लाइफस्टाइल की तरफ नेग्लिजेंस नहीं रखते। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक तरीके का एक टाइम बॉम्ब फटा है, जिसके बाद अब लोगों ने समझा है कि हमें हमारे हेल्थ की तरफ ध्यान रखना जरूरी है। हैंड हाइजीन, क्लीनलीनेस, ये कोविड-19 की वजह से करना जरूरी नहीं है, ये हमने अदरवाइज भी थ्रू आउट आवर लाइफ हमेशा करना चाहिए। Right, sir. Thank you for answering all the questions. The answers were very satisfactory. One last thing, that is, you are an ideal doctor. जितने भी बडिंग डॉक्टर्स है, जो भी अभी पढ़ाई जिनकी चालू है, या फिर who are working somewhere as an interns, everyone sees you as an ideal doctor. तो उनके लिए एक क्या मैसेज आप देना चाहोगे? आई थिंक 2020 में ये जो कोविड-19 पैंडेमिक आया है, ये हम अगले और 10 साल तो भूलने वाले नहीं हैं, क्योंकि द वर्ल्ड हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल। एवरीबडी इज जस्ट right where they were for the past 3-4 months. तो this is a good time for people to realize कि हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। तो यंगर जनरेशन को तो मैं कहना चाहूंगा कि हमें फ्यूचर में और डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी लोग सोच रहे थे कि उन्होंने डॉक्टर बनना चाहिए या नहीं, उन्होंने बायोलॉजी में या मेडिसिन में इंटरेस्ट रखना चाहिए या नहीं, तो दिस इज अ गुड time for you to realize that yes, in future we need more doctors than maybe celebrities. So you should aspire to become a doctor. As far as people who are actually now interns, people who are budding doctors, I think we are in a war, and we need to be strong. We need to first protect ourselves, and then make sure that we give our 100% to the community. अगर हम फ्रंट लाइन वर्कर्स ही इंजोर हो जाते हैं, अगर एक भी डॉक्टर इन्फेक्ट होता है, तो वो कम से कम 100 से 500 लोगों का इलाज करने से रुक जाता है। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम खुद को, यानी डॉक्टर्स खुद को प्रोटेक्ट करें, नर्सेस जो है, बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स है, सैनिटेशन वर्कर्स है, ये लोग खुद को पहले ठीक से प्रोटेक्ट करें, खुद के प्रोटेक्शन का ध्यान रखें, और साथ ही में लोगों की जो सर्विस है, लोगों की जो सेवा है, वो भी हम करने में कहीं पे भी कम ना पड़े, क्योंकि ये एक तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन है और हम सब लोगों ने मिलके इस चीज से लड़ना है। हो सकता है अगले आने वाले कुछ महीनों में बाकी काफी सारी इंडस्ट्रीज है जो हेल्थ के तरफ डाइवर्ट की जाएगी। जो लोग अभी तक क्लॉथ प्रोडक्शन में थे, या जो लोग अभी तक इंडस्ट्रियल केमिकल्स बना रहे थे, हो सकता है इन लोगों से आगे गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करे कि आप हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए गाउन्स बनाए, आप कुछ ऐसे मेडिसिन के प्रोडक्शन में हेल्प करें जिससे हम इस कोविड-19 से जीत सके। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट है सब लोगों का मेरे हिसाब से। आज हर कोई इस वॉर में साथ में मिलके लड़ रहा है। इसमें कोई भी कंपैरिजन करना गलत है कि पुलिसमैन इन लोगों से अच्छे हैं या डॉक्टर्स उन लोगों से अच्छे हैं, या सडनली अभी लोगों के लिए डॉक्टर्स भगवान बन गए हैं या हीरोज बन गए। ऐसा नहीं है, डॉक्टर भी साल भर वही काम करते हैं जो आज वो कर रहे हैं, पुलिसमैन भी साल भर वही काम करते हैं आज वो जो कर रहे हैं। और जो लोग आज घर पे बैठ के लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं, जो लोग आज पिछले 2 महीनों से घर से बाहर निकले नहीं, ये भी एक तरीके के वॉरियर्स है, क्योंकि इनके एफर्ट्स की वजह से ही हम ये पूरी बीमारी को कंटेन कर सक रहे हैं, इसको हम लिमिट कर सक रहे हैं। So I believe it's a combined effort from every citizen of this country, and all of us need to be appreciated for our efforts individually, even if you are sitting at home, or if you are a basic person who's just supplying milk to the neighborhood people. So everybody is a hero and everybody is a warrior in this battle for COVID-19. All right. Thank you so much, sir. It was really a sigh of relief for all of us after talking to you. I again thank you on behalf of all the people who have been with us, and I hope we come out of this all together safely. And I wish you all the best for your future. Thank you. I'm thankful for you to inviting me. एंड मुझे लगता है कि लोगों को जैसे जैसे जानकारी ज्यादा रहेगी, वैसे वैसे हम इस चीज से लड़ने में और सक्षम रहेंगे। Right. थैंक यू। Thank you so much.